व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भारत की जंग में दिलचस्पी नहीं, लेकिन आतंकियों को सजा देना जरूर। BSF ने जारी किया तबाही का नया वीडियो। आखिर कौन है जोनास मसेट्टी, क्यों मिला पद्मश्री सम्मान? तो खबरें विस्तार से। भारत की जंग में दिलचस्पी नहीं, लेकिन आतंकियों को सजा देना जरूरी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने और आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा सिटी पहुंचा, जहां भारत के राजदूत ने उनका स्वागत किया। इस दौरान थरूर ने नेशनल असेंबली का दौरा किया और सांसदों के समूह के साथ विधानसभा अध्यक्ष डाना कास्टानेडा से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ बैठक में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम सभी अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि और भारत की विभिन्न भागों से आते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय उद्देश्य में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान सरकार इस भयानक अपराध के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब स्पष्ट रूप से यह साफ हो गया कि पाकिस्तान द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो 2 सप्ताह बाद 7 मई को हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों के मुख्यालयों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। What is interesting is that we have all come from different political backgrounds and from different parts of India. Y es curioso el que todos venimos de diferentes partidos políticos y de diferentes partes. But we are united in the purpose of our mission. Estamos unidos en nuestro enfoque y para adelantar los discursos de la India. We are here because of a tragic event in our country on the 22nd of April this year, when terrorists crossed the border from our neighboring country, Pakistan, and killed 26 Indian citizens when they were just on a holiday as tourists in the beautiful state of Kashmir. Venimos aquí por un trágico evento que sucedió en abril en India, en la parte de Kashmir, donde lamentablemente 26 de nuestros ciudadanos fallecieron letalmente. We waited to see whether the Pakistan government would take any action against the perpetrators of this terrible crime. When nothing clearly was being done, 2 weeks later, on the 7th of May, we attacked known headquarters of terrorist bases inside Pakistan. Entonces, hemos hablado con Pakistán, desde donde originó este ataque vínculos de terroristas, día 22 de abril. Hemos dado suficiente tiempo a Pakistán para tomar medidas y acciones contra estos terroristas. Pero después de 2 meses, dos semanas, no había ninguna acción y India ha tomado decisión para atacar muy precisamente los locales desde donde hay origen de estos terroristas. We had no interest in starting a war, but we felt that the terrorist actions could not go unpunished. So, no queremos crear una guerra en esta región, pero también fuera muy importante para nosotros para tomar algunas acciones contra estos terroristas, que no puede ser sin castigar a ellos. So we conducted very carefully calibrated, precise strikes on 9 locations of terrorist organizations that are already listed by the United Nations Sanctions Committee. Y hemos elegido 9 lugares muy precisas, muy calibradas, donde designado por Naciones Unidas sigue siendo sus actividades. Entonces, India localizados y precisamente ataques sin dañar las población civil. It was an action of retribution, not
the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. Queríamos dar una mensaje muy para empezar una guerra. To show you how careful we were, we conducted the strikes at night between 1:05 and 1:30 in the middle of the night, so there would be very few civilians around at that time. Second, we refused to touch any government facilities, even any Pakistani military facilities and any civilian facilities, only known terrorist bases. New normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the Sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. India is not a warmongering state. Even when we conducted those attacks, the first 9 terror base attacks, our government said very clearly, without any doubt, that we are not looking for any escalation. These were carefully, precisely calibrated strikes. We hit only terror bases. We hit no military facilities of Pakistan, no government facilities, no civilian homes. Very precise targeting meant that even within the compounds of Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, we hit specific buildings. And we did so at night, between 1:05 and 1:30 at night. Why? Because we didn't want to have too much of collateral damage. At a different time during the day, there might have been a lot of civilians around. We didn't want their lives to be hurt. Thank you. So, Madam President, I wanted to thank you for receiving us, but also to seek your understanding and support. We do believe, unfortunately, that this problem is not over, and if there is another terrorist incident tomorrow, we believe we will not have to come back here. We will have your understanding already in advance. Y muchas gracias para recibirnos. Y también sabemos que no hay fin de este terrorismo todavía. Sin futuro hay algunos actos de terrorismo y vamos a tomar medidas muy fuertes. Y esperemos que no tenemos que devolver para explicar de nuevo. Claro. Usted va a entender bien nuestra razón porque hemos tomado tanto medidas contra terrorismo. De hecho, nuestra legislación es muy rígida ante el terrorismo. We have a very strong law against terrorism. And so बढ़ते अगली खबर क्या, बीएसएफ ने जारी किया तबाही का नया वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न सिर्फ हवाई हमलों के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि जमीनी मोर्चे पर भी पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। 10 मई को जब पाकिस्तान ने भारत की अग्रिम चौकियों पर ड्रोन हमले किए तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने पाकिस्तान के 42 सीमा चौकियों को तबाह कर दिया। मंगलवार को बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। वही सांबा इलाके में एक पोस्ट का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बीएसएफ आईजी ने कहा, 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध, ऑपरेशन पराक्रम में भी बीएसएफ ने अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। आईजी ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी को उम्मीद थी कि भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा और यह भी आशंका थी कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश जरूर करेगा।
और जूम आउट करो, वो टावर, बड़ा वाला टावर भी दिखे। आएगा सर अभी 2-3 ये ये हो गया सर। बजरंग बली की जय। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में
हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी 1 सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी, और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया, और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए, और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही, और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे, और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहां बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि हमारी तारबंदी से आगे हैं, और वो आगे इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक इंच की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे सभी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और अभी कुछ क्षणों के बाद ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने भी पोस्ट में आगे रहते हुए अपनी कंपनी को कमांड किया और दुश्मन के मंसूबों को विफल किया। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के इस इलाके में और एलसी और आईबी दोनों ही क्षेत्रों में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमेशा बीएसएफ तत्पर रही है अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए, और देश की। बढ़ते अगली खबर क्यों, आखिर कौन है जोनास मसेट्टी, क्यों मिला पद्मश्री सम्मान। बुधवार को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान एक शख्स ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जो नंगे पैर, गले में रुद्राक्ष की माल डाले हुए और तन में सूती धोती लपेटे हुए महामहिम के दरबार में पहुंचा था। ब्राजील के इस नागरिक को पद्मश्री से भी नवाजा गया। ब्राजील के दिव्यदांत आचार्य जोनास मसेट्टी, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, को भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पण और वैश्विक स्तर पर इसके प्रचार प्रसार के लिए दिया गया। भारत में वेदांत और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जोनास ने ब्राजील के पेट्रोपोलिस में विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से वह न केवल ब्राजील बल्कि अन्य देशों में वेदांत, योग, संस्कृत, गीता और रामायण का प्रचार प्रसार करते हैं।
उनकी शिक्षाओं से अब तक 1.5 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हो चुके हैं। आचार्य योनस मजेठी अध्यापक। You've been given Padma Shri, you've been awarded Padma Shri. First of all, how does it feel? What do you want to say? Did you expect this coming? I was not expecting. It's a great honor for us, in being a Brazilian and being dedicated to this tradition for 20 years. It's a big blessing. In Brazil, there are many people that are studying Vedanta, and I feel that this honor is not just for me, but for our family that is like striving to make this tradition happen. Sir, how come you were inclined towards spiritualism? How it started? If you can tell us a bit about your journey. Sure. Before entering Vedanta field, I was in the stock market. I'm a mechanical engineer. And I've been working with the biggest companies in Brazil, and I felt very empty, looking for a meaning for my life. It was then that I met yoga and Vedanta and all the Vedic culture, and then I started studying, and I ended up in an ashram in Tamil Nadu with Swami Dayananda, where I studied for 4 years. So from Tamil Nadu, your journey began. Yes. How it changed your life? You can tell us something. Sure. When I came to do this long-term study, I was not sure even if I was going back to Brazil. Then suddenly I understood that I was supposed to go back to the place I came from to spread this knowledge and this message of the Vedas. I've been doing that for the last 12 years, and now it has grown a lot, and that's why I'm here. Now when you go to Brazil, how do you, are people also following you, trying to understand your journey? How is it going? Because India is in a way a spirituality hub. We all the religions, in a way, they all practice spirituality. So what do you want to say on that? One very interesting thing was when the Portuguese were coming to India, they by mistake has ended up in Brazil. And that's why in Brazil the native people are called Índios, because of India, you know. And there is a lot of common things on the spiritual ground in Brazil and in India. And because of that, I think that Brazil is a very fertile ground for Vedanta studies. Lastly, sir, what would you like to say to Government of India for recognizing you to give Padma Shri in this field? I would like to thank and say that's a great honor, and especially for us that are living this Vedic tradition abroad. It's very important to be recognized, and also for the newcomers, you know, to have an authority-based, reference to study and all that. So we are very grateful and hope that we can serve this tradition even more. Thank you. You're planning to practice spirituality here in India, and how, if yes, then what is your future plan? Yeah, I was thinking firstly that there are so many teachers and acharyas in India that it was not necessary for a Western to come to teach their own culture. But at the same time, I see a lot of youngsters that are losing the opportunity to value their own culture and understand all these things. And they are so enchanted by the Western way of thinking that I think that a Western coming and telling the message, you know, maybe will bring value back. So I have this plan. This year we have a first group of people coming in September to Brazil, where they're going to spend some time studying Vedanta and visiting the Amazon forest. बढ़ती अगली खबर क्या? WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को पॉक्सो केस में राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इस रिपोर्ट में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग होने पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक पहलवान द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। पुलिस ने साल 2023 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि 6 महिला पहलवानों द्वारा दायर एक अलग मामले में ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप अभी भी बरकरार है। पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध में न्यूनतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जो लागू धाराओं पर निर्भर करता है।
पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों से लगातार इनकार किया है। अपने ऊपर लगे पॉस्को के आरोपों को हटाए जाने पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब मानने को क्या बचा है। पहले ही दिन यानी 18 जनवरी 2023 को मैंने कहा था कि ये सारे आरोप झूठे हैं। देखिए आगे की वीडियो। अब इसमें मानना क्या है? देखिए, मैंने पहले दिन 18 जनवरी 2023 को मैंने कहा था ये सब झूठ है, और मैंने इसलिए कहा था कि मैं दूसरे को नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को पढ़ना चाहेगा ऐसी घटनाओं के बारे में तो 1 मिनट काफ़ी है, और इसलिए मैंने पूर्णतया इस आरोप को खारिज किया था। और आज 2023 में जो कहा था, आज भी उसी बात पर कायम हूं। और मैंने कहा था कि अगर ये आरोप सच साबित हुए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, और यहाँ तक कि चार्जशीट लगी तब कुछ लोगों ने कहा कि फांसी पर क्यों नहीं लटक जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला। पूरे देश में खुशी की लहर है। देश के हर प्रांत ने, हर मीडिया ने, हर चैनल ने, हर हिंदी, उर्दू, कन्नड़ अखबार ने, सब ने इस विषय को प्रमुखता से स्थान दिया है, क्योंकि मेरा मानना है, कल मैंने बोला था, इस देश के अंदर 3 धाराएं ऐसी हैं जो महिलाओं के संरक्षण के लिए, दलितों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। आज इन तीनों धाराओं का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक कल जजमेंट आया है, शाम को मैं देख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप में रहने के बाद, आपसी सहमति के आधार पर साथ रहने के बाद जो मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ये अदालत पर भार है। एक तरीके से जो विचार मैंने प्रकट किया वो मेरा विचार नहीं है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, और आज के तारीख में 3 धाराओं से दलित उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न से देश परेशान है। विशेष करके मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं। और कल मैंने अयोध्या से ये बात बोली थी कि मैं नहीं कहता कि इन धाराओं को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये संरक्षण के लिए बनाई गई हैं, सोच समझ करके बनाई गई हैं। लेकिन आज इन धाराओं को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के लिए सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित ग्रामीणों के लिए चिकित्सा शिविर लगाया। इस शिविर में नंबला सहित कई गांवों के 500 से अधिक लोगों ने चिकित्सा सहायता प्राप्त की। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और मुफ्त दवाएं वितरित की। स्थानीय लोगों ने सेना की इस पहल की सराहना की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि चिकित्सा शिविर में नंबला ए, नंबला बी, नंबला सी, सहोरा, हथलंगा, सिलीकोट, घरकोट, बालकोट, मचिकांद्र, बांडी, लगामा, रिजरवानी और परनपिला गांवों के 500 से अधिक नागरिकों ने चिकित्सा सहायता प्राप्त की। चिकित्सा शिविर में एक महिला चिकित्सा अधिकारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, उदर रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सा और अन्य डॉक्टरों के अलावा मनोवैज्ञानिकों भी ग्रामीणों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जांच व उपचार के लिए उपलब्ध रहे। ग्रामीणों को उनकी बीमारियों के उपचार के लिए निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। मणिपुर में 10 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मणिपुर में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। दरअसल यहां भाजपा के 8 एनपीपी के एक निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसके लिए 10 विधायकों ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत सिंह ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। हम राज्यपाल से अपील कर रहे हैं कि हम एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं। हमने राज्यपाल को एक कागज भी दिया है जिस पर हम सभी ने हस्ताक्षर किया है। वही विधायक सपाम निशिकांत सिंह ने कहा है कि अधिकांश लोग एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं और यही कारण है कि हम राज्यपाल से मिलने यहाँ आए।
I think it should happen soon. I mean, we are appealing to the government, to the governor, so that we want a popular government, and we also gave in a paper where a lot of us have signed. Basically, well, I'll put it together. All the MLAs in Manipur, or rather the NDA MLAs, are very interested and very keen, for the sake of Manipur, to have a popular government installed. And we would want the support of the public also, because without that, things can work out a little difficult. So to have a smooth and quick formation of a government, we need the public also. How many signatories was there when I think the one we gave, has around 22 signatures. But otherwise, besides that, some people are not here. Or this is the same paper that we gave to the Prime Minister. Same paper, basically. But everybody is by and large together in this. How many of you have gone to meet? I think we were 10 of us, right? We were 10 of us. So, do you really think that, first as you say, it will be supported from different corners of the other factions? Of course. Everybody wants a popular government. Everybody. It's in the welfare of the people. बढ़ते अगली खबर की ओर। 65 करोड़ के भ्रष्टाचार में आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया का हाथ, पुलिस संजय निरुपम। अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई से सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक अपराध शाखा ने 65 करोड़ रुपए की मीठी नदी के गाद निकालने के घोटालों में गिरफ्तार किए गए एक बिचौलियों के एक साथ उनके कथित संबंधों के लिए 8 घंटे तक पूछताछ की थी। आज एक बार फिर जांच अधिकारी ने डीनो मोरिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि जांच के दौरान पता चला कि आदित्य ठाकरे के सबसे अच्छे दोस्त फिल्म अभिनेता डीनो मोरिया की भी इसमें भूमिका थी। मुंबई पुलिस ने डीनो मोरिया और उनके भाई से 8 घंटे तक पूछताछ की। डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के बीच संबंधों के बारे में पूरी मुंबई जानती है। संजय निरुपम ने कहा, दोनों दोस्त अक्सर साथ में पार्टीज भी करते हैं। जांच के दरमियान पाया गया कि आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र दीनू मोरिया जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें एक भूमिका है। मुंबई पुलिस ने दीनू मोरिया को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल थे। इस दीनू मोरिया की क्या भूमिका है इस पूरे घोटाले में, आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन दीनू मोरिया और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं, वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। और यह भी आरोप लगा था कि जिस दिन दिशा सालियन ने सुसाइड की कथित तौर पर, उस दिन उसके घर की पार्टी में ये दोनों साथ साथ थे। दीनू मोरिया को आदित्य ठाकरे ने अपनी दोस्ती के बदले मुंबई में कई जगहों पर ओपन जिम दिया था, ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दीनू मोरिया जो नशीली दवाओं के व्यापार में है, जिस पर आरोप लगता रहा है, ऐसे ड्रग पेडलर और ड्रग ट्रेडर के बीच के साथ आदित्य ठाकरे के संबंध का क्या अर्थ है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। दीनू मोरिया शहर के बड़े बड़े लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है। क्या वो ड्रग्स उधर भी जाता है क्या, मातोश्री भी जाता है क्या, ये छानबीन का विषय है। इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर दीनू मोरिया पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और खासकर अब मीठी नदी के भ्रष्टाचार में जब उस कॉन्ट्रैक्टर के वो संपर्क में था, जिसकी जानकारी, जिसके सारे फोन रिकॉर्ड्स मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं, तब इस सवाल उठता है कि एक फिल्म एक्टर का बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से क्या लेना देना। क्या दीनू मोरिया के दबाव में, प्रभाव में आकर के उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गया था? क्या जो मध्यस्थ हैं, जो दलाल थे, उन दलालों में से एक दीनू मोरिया था? अगर दीनू मोरिया ने दलाली खाई और मीठी नदी के भ्रष्टाचार में उसकी कोई भूमिका है, तो निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
क्या मीठी नदी में जो 65 करोड़ के मीठी नदी की सफाई के नाम पर जो 65 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी छानबीन मुंबई पुलिस कर रही है, उसमें आदित्य ठाकरे की भी कोई भूमिका है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अहमदनगर में बाढ़ में फंसे लोग। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के खड़की गांव में गंभीर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस इलाके में कई जगहों पर पानी कमर तक भर गया, जिससे लोग घरों में फंसे हुए हैं। यह गांव सेना के अमाड कॉप्स सेंटर एंड स्कूल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अहिल्यानगर के जिला मजिस्ट्रेट ने तत्काल भारतीय सेना से सहायता का अनुरोध किया है। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए सेना के अमाड कॉप्स सेंटर एंड स्कूल से एक राहत टीम को रवाना किया गया है। इस टीम में एक चिकित्सा दल और एक इंजीनियरिंग टुकड़ी शामिल है। इनका मुख्य उद्देश्य गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है। सेना की राहत टीम ने शाम करीब 5:30 बजे मौके पर पहुंचकर नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया। बढ़ते अगली खबर की। गुस्से से तमतमाए विराट कोहली। जितेश शर्मा के आउट या नॉट आउट का फैसला तीसरे अंपायर के पास गया, जहां उन्होंने पाया कि गेंदबाज का पैर पॉप रिंग क्रीज से आगे निकल गया था, इसलिए उन्होंने नॉट आउट दिया। जबकि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने इस अपील को वापस ले लिया। जानकारी के लिए बता दें कि 228 के लक्ष्य को रन चेज है। अब आरसीबी को क्वालिफायर में पंजाब किंग्स के खिलाफ 29 मई को खेलना है। बढ़ते अगली खबर क्या। ऋषभ पंत ने दिलाई आरसीबी को टॉप 2 में जगह। आईपीएल 2025 में कमाल का खेल दिखाते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉप 2 में जगह बना ली है। बीते मंगलवार को आरसीबी ने लखनऊ को हराकर अपनी शीर्ष 2 में जगह पक्की की, लेकिन आरसीबी के लिए यह जीत नामुमकिन होती अगर जितेश शर्मा ना होते, क्योंकि उनकी शानदार पारी की बदौलत ही टीम को 6 विकेट। पीएम के कर्मचारियों को लगेगा जोरदार झटका। दुनिया भर की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में ग्लोबल छटनी का ट्रेंड चल रहा है। सबसे बड़ी टेक कंपनियों के तौर पर पहचान बनाने वाली कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें पीछे नहीं रही। अब खबर आ रही है कि आईबीएम में अपनी 8000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। इस छटनी का सीधा असर मानव संसाधन कर्मचारियों यानी एचआर स्टाफ पर हो सकता है। खबर के अनुसार ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बिजनेस और कामकाज में अपनाया जा रहा है, वैसे वैसे भूमिकाएं खत्म की जा रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण ने ये जानकारी शेयर की थी कि कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तेजी से एआई और ऑटोमेशन यानी स्वचालन को अपना रही है। उनका यह भी कहना था कि ऑटोमेशन में सेविंग को सोशल मीडिया पर अपनी घोषणा में एचबीओ ने लिखा, प्रिय मिस्टर पॉटर, मिस ग्रेंजर और मिस्टर विस्ली, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विजक्राफ्ट एंड विजार्टी में जगह मिल गई है। यह लाइन फैंस के लिए एक इमोशनल टच लेकर आई है, जिसने हैरी पॉटर की सारी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। हालांकि इस घोषणा के तुरंत बाद एचबीओ ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। इसके पीछे उद्देश्य नए बाल कलाकारों को किसी भी तरह की ट्रोलिंग या नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाना है। बढ़ते अगली खबर क्या। सीएम फडणवीस ने वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने भी वीर सावरकर को जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर लिखा है कि देशभक्ति के प्रज्वलित प्रतीक एवं हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। परदेशात जाऊन शिक्षण घेत असताना इश्क ने ले ली जान, सीने पर बैठकर किए 3 वार। जौनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते 22 वर्षीय डी फार्मा के छात्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर
समादगंज कुरनी पंचायत भवन के सामने हुई, जिसके संबंध में एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक छात्र का नाम अनुज यादव है, आरोपी का नाम मनोज यादव है। दोनों पड़ोसी है। छात्र बेटी से प्रेम प्रसंग के चलते पिता से रंजिश रखता था, जिसके चलते उसने हत्या कर दी। मनोज ने पहले अनुज की गर्दन के बगल में चाकू घोंपा से अनुज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद मनोज उसके सीने पर बैठ गया। उसने चाकू से उस पर 3 और वार किए और उसका गला रेत दिया। अनुज की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने अनुज को अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनोज की बाइक उसके घर के बाहर खड़ी थी। पूरा परिवार फरार है। एएसपी ने बताया कि अनुज के परिजनों के शक पर पुलिस टीम आरोपी मनोज के घर पहुंची। तब तक मनोज अपने परिजनों के साथ मौके से फरार हो चुका था। फोन आ रहा है आपके भाई को, पूछे कहाँ है पुलिस बताया कि भैया है। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।